آپ دیکھ رہے ہیں بلیو ٹی وی پروگرام کنگڈم ٹاک کے ساتھ پاسٹر جسٹن البرٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویکلی بادشاہت کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. خدا کی بات جو مجھ تک پہنچتی ہے، بادشاہت کی بات جو مجھ تک پہنچتی ہے، اور خداوند کی بات جو اس نے کہا کہ میں آپ تک پہنچاؤں، وہ لے کر میں آپ کے حضور، آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے خداوند کا شکر ہو کہ اس نے یہ موقع نئے سال کے بعد ہمیں دیا، اور نئے سال پر میں نے ایک میسج دیا تھا، اور وہ میسج میں نے دیا تھا کہ خدا کی بادشاہت کے لیے کس طرح تیار ہونا ہے. کس طرح تیار ہونا ہے، اور کس طرح ہم جو ہے ٹرو چرچ بن سکتے ہیں. ٹرو چرچ یعنی وہ لوگ جو اس کی بادشاہت میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو اس کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ خدا کے راست باز لوگ، ان کو ٹرو چرچ کہا گیا ہے. اور اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، جس میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ ایک ٹرانزیشن ہے. سم ٹائم ٹرانزیشن پیریڈ میں ہمیں بہت ساری مشکلات کو اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے ان مشکلات کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان باتوں کو، ان آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے، اور ان پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے. بادشاہت کوئی بہت بڑا مشکل ٹاپک نہیں ہے جو سمجھا نہ جا سکے. سمپل سی بات ہے، بادشاہ ایک رولر، حکمران، ساورن پاور رکھنے والے حاکم کو کہتے ہیں. اور بادشاہت اس ٹیریٹری، اس حصے، اس خطے، اس ملک کو کہتے ہیں جس کے باسی اور جس کے اندر آنے والی تمام چیزوں کی ملکیت اور حاکمیت اس بادشاہ کے کنٹرول میں ہو. اس کو بادشاہت کہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ پوری دنیا، پوری زمین خدا نے جب سے بنائی، that is still belong to him. زبور 24 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ساری زمین اور اس کی ساری معموری، یعنی ساری خلقت، ساری چیزیں جو اس میں موجود ہیں، وہ ہمارے خدا کی ہیں. اور جب اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر اس پیغام کو دے کر بھیجا
اور اس کو زمین پر پھر سے ریسٹور، ری اسٹیبلش اور بحال کرنے کے لیے جب خدا نے اپنے بیٹے، اپنے کلمہ جس کو جسم دیا زمین کے اوپر، اپنی پاور آف انکارنیشن سے کے سبب سے، تو وہ یسوع مسیح زمین پر آ کر اس بات کو کا اعلان کرتا ہے کہ ریپینٹ، چینج یور تھنکنگ. توبہ کا مطلب بہت سارے لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں تو اباؤٹ ٹرن یا کسی بات سے ہٹ جانا. نہیں، نہ آپ کسی بات کو جو برا کام کر رہے ہیں اس کے ہٹ جانا، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں. اور نہ کہ صرف سوچنا چھوڑ دیں بلکہ اپنی سوچوں کو تبدیل کر کے اس راستے کی بابت سوچیں جس راستے پہ آپ کو چلنا ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے، بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس کو اس پر چلنا ہے، اور وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں مڑے گا. اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس طرح تربیت دیں، اس طرح سے تربیت خود بھی پائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندھا اندھے کو کیسے راہ دکھا سکتا ہے؟ ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے شخص کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے خود تیرنا سیکھیں، خود بچنا سیکھیں، خود بچیں تاکہ آپ دوسروں کو بچا سکیں. بادشاہت کا جو ٹاپک، بادشاہت اور بادشاہ کا جو یہ وسیع تر مضمون یا اس کی سٹڈی، اس کی تعلیم آج تک دنیا سے اوجھل رکھی گئی. عقیل پانی کا گلاس لیں. اوجھل رکھی گئی. اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارے چرچ لیڈرز کا ہے، ہمارے ایونجلسٹ کا ہے، ہمارے وہ لوگ جو صرف اور صرف شفا کو ہی نجات سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے شفا پالی اور نجات پالی، لوگوں کی زندگی میں معجزہ ہو گیا تو انہوں نے نجات پالی. یاد رکھیں کلام خداوند میں لکھا ہے کہ پھر جو مجھے خداوند اے خداوند کہتے ہیں، متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 21ویں 22ویں 23ویں آیت میں، جو لوگ مجھے اے خداوند کہتے ہیں سبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اور لوگ کہیں گے کہ تب وہ لوگ کہیں گے کہ خداوند ہم نے کب تیری بات نہیں مانی، ہم نے تیرے نام سے، ہم نے تیرے کلام کی منادی کی، تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا ہے. تو خداوند کہے گا کہ وہ بادشاہ کہے گا کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. اس لیے بادشاہت کو جاننا، بادشاہت کو پریچ کرنا، بادشاہت کو دوسروں کو سکھانا، بادشاہت کا اعلان کرنا، یہ لیڈرز کا کام ہے. آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنا کس طرح سے ڈیلے ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کلام مقدس میں سے، آئیے ہم اس بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوں، اس کے تخت کے سامنے حاضر ہوں اور اس کی تعریف اور حمد کریں اور اس کو پریز کریں. وہی ورشپ کے لائق ہے، وہی خدا ہے جس کی تعظیم کی جا سکے.
आइए मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक, बादशाह, आका और खालिक, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा नाम अजीम है और तेरे नाम से ए खुदम खुदा बदरूहें कांपती हैं और तेरे कुदरत वाले नाम के सबब से मौजात ज़हूर में आते हैं। और कलाम करना तेरी खूबी है। जब तू बोलता है तो तख्लीकी काम करता है, जब तू बोलता है तो तरबियत करता है, जब तू बोलता है तो काट छांट करता है, जब तू बोलता है तो इंसान बनता है, इंसान को तराशता है। तू तेरा शुक्र करते हैं। अपने लोगों से बोल, कलाम कर, अपने लोगों को बचा ले खुदा। पीपल आर डाइंग विदाउट योर किंगडम, पीपल आर डाइंग विदाउट नोइंग यू। Jesus Christ, help them. Let them understand. Let them be understanding your kingdom. ऐ खुदावन तेरी बादशाहत का जिस मंजिल का पता ना हो, जिस रास्ते का पता ना हो और जहां पहुंचना हो उसके बारे में ऐ खुदावन मालूमात ना हो, तो ऐ खुदा इंसान खोई हुई जिंदगी बसर करता है, भटकी हुई जिंदगी में रहता है। इसलिए अपने लोगों को बचा और छुड़ा। और ऐ खुदा इस बड़ी ऐ खुदा आने वाली जिंदगी में जितनी चैलेंजेस, जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां आ रही हैं, कलाम खुदा में लिखा है कि ना ऐसी मुसीबत दुनिया के शुरू से आई होगी और ना इसके बाद आएगी। इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और उससे पहले तो अपने चर्च को, अपने लोगों को ऐ खुदा अपने पास जमा करने वाला है, ताकि तू उन अपने मानने वालों को रिवार्ड के तौर पर दे, ये बता सके कि यू आर नॉट फॉर दीज ट्रेबुलेशंस। खुदा तूने पहले से बता दिया है कि तू लेने के लिए आने वाला है, ताकि तेरे ईमानदार लोग, तेरे बच्चे, बादशाहत के फरजंद, वो जो इस ट्रेबुलेशन से बचकर तेरे साथ ऐ खुदा अब्दी खुशी में शामिल हो। खुदावन अपने लोगों को बरकत दे। ऐ खुदा बिलीव टीवी और इसके फाउंडर को बरकत दे खुदा। और इसी तरह खुदा लाइव देखने वाले लोगों के लिए बरकत चाहता हूं, तेरी सलामती चाहता हूं। अपना हाथ बड़ा छू ले खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूं। मेरी टीम जो गुजरावाला के में ब्रदर दानिश पोरस के लिए दुआ करता हूं, जो इस वक्त इस मीटिंग को खुदा लाइव दूसरों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। बहुत सारे खादमों को, बहुत सारे नौजवानों को इकट्ठा कर, ताकि ये बादशाही के पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में वो इस प्रोग्राम को मैनेज करके दूसरों तक पहुंचाकर खुदा वो बरकत पाए जिसका वादा तूने किया है। खुदा बहुत सारे लोग इसको वॉच पार्टी पे लगाना शुरू करें, दूसरों तक को बताना शुरू करें और दूसरों तक पहुंचाना शुरू करें, और तेरी बादशाही में आकर लोग दुखों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, जॉबलेसनेस से बच सकें। यीशु के नाम से आमीन। अजीज बहन भाइयों, खुदा की बादशाही ही हल्ले मुश्किलात है। खुदा की बादशाही कोई रिलीजन नहीं है, ये मैं बता दूं। हम मसीहों ने मसीहियत को रिलीजन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, इबादत को जो रिलीजियस बना दिया है। रिलीजियस का जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ फर्जी तौर पर चर्च जाने को वो मसीह अपने आप को कहलाते हैं। वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन प्रेयर करना, इबादत करना, खुदा से मुलाकात करना है, खुदा से दोस्ती बढ़ाना है, खुदा से डायरेक्ट ताल्लुकात बनाना है। याद रखें कि रास्तबाजी का मतलब है कि राइट अलाइनमेंट विद द गॉड, राइट प्लेस इन द गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम एंड राइट पोजीशन इन द किंगडम ऑफ गॉड।
इसको रास्तबाजी कहते हैं, इसको राइटियसनेस कहते हैं। आइए यकीन करें कि जब आप इस अपनी रास्तबाजी को पहचान लेंगे कि हमारी रास्तबाजी, हम किस तरह रास्तबाज ठहरते हैं, हमें इसके लिए कोई तरद्दुद करना नहीं पड़ा, हमें इसके लिए कोई कीमत पे नहीं करनी पड़ी। हाँ, हमारी कीमत अदा कर दी गई है सलीब पर। मेरे यीशु ने आपके और मेरी खातर, पूरे जहान की खातर, तमाम अक़वाम आलम की खातर, जिस पूरी दुनिया के अंदर अब जो तरह तरह के मज़ाहब बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी खातर उसने सलीब, मौत सही, सलीबी मौत सहकर उसने मौत, कब्र और गुनाह पर फतह पाई। शैतान की सिरी को कुचलकर कहा, मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। अजीज बहन भाइयों, इस बादशाहत के अंदर दुख नहीं है। लिखा वो तुम्हारे तमाम आंसू पूंछ डालेगा। मत ख्याल करें कि आप बादशाही से बाहर रहकर, खैरात करके, बादशाही से बाहर रहकर खुदा के लिए बिल्डिंग्स बनाकर, बहुत सारी जो है वो हदिये देकर खुदा को खुश कर लेंगे। अजीज बहन भाइयों, आपने पूरी जिंदगी के अंदर खुदा को सिर्फ हदिये दिए हैं, उसको अपना आप नहीं दिया, तो आपका वो पैसा भी जाया और आपकी जिंदगी के तमाम लम्हात जो खुदा के बगैर गुजरे हैं वो सब जाया हो चुके हैं, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए आइए आज जाने उस बादशाहत को और उसकी बादशाहत को दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ दें। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को, बिलीव टीवी पर और मेरे अपने फेसबुक पर, मेरे व्यूअर्स जो देखते हैं, जो मुझे रेगुलर जो देखते हैं, उन सब से गुजारिश है, एक तो इस पूरे मैसेज को पूरा सुना करें, और एक जो बातें कहता हूं ये आपकी भलाई के लिए, ये खुदा आपकी रूह से वो कलाम करता है, और इस कलाम को रायगा ना जाने दें और इसके मुताबिक इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं। अजीज बहन भाइयों, आइए खुदाम के कलाम को पढ़ते हैं। कलाम खुदाम में मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब, उसकी सैर करेंगे। जो आज का टॉपिक है और जो मेरी मिनिस्ट्री का जो विजन वर्स है, मेरी मिनिस्ट्री का मोटो है, मेरी नहीं बल्कि तमाम दुनिया की मिनिस्ट्रीज का यही मोटो होना चाहिए जो खुदाम यीशु मसीह ने मत्ती 24:14 में फरमाया है। और खुदाम की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। लिखा है, फिर पढ़ेंगे, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी दुनिया में, तमाम दुनिया में हो गई ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। पहली बात तो यह है कि अब हमें अंदाजों की जरूरत नहीं है, हमें टेवे लगाने की जरूरत नहीं है, हमें इस बात की परेशानी नहीं है कि हमें पता नहीं कि खात्मा कब होगा। खात्मा कब होगा? खात्मा तब होगा, बाइबल कहती है, खुदाम यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, कहता है कि और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। इंग्लिश वर्जन में कुछ यूं लिखा है, कलाम खुदावंद में
जरा जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बड़ा वाजे समझ आनी शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि इसका तर्जुमा पढ़े। लिखा है एंड दिस गॉस्पल ऑफ द किंगडम, दिस गॉस्पल, इसका मतलब है देर आर मैनी गॉस्पल्स, बहुत सारी खुशखबरीज हैं। देर आर मैनी गॉस्पल बट दिस गॉस्पल, देर आर मैनी मैसेजेस बट दिस मैसेज, देर आर मैनी टॉकिंग्स, मैनी टीचिंग्स बट दिस गॉस्पल, दिस टीचिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। लिखा है will be preached in all the world as witness to all the nations, and then the end will come. हमें अब इस बात का अंदाजा हो गया कि बादशाही की मुनादी जब तक तमाम दुनिया, जब मैं तमाम दुनिया को कहता हूं तो तमाम अहले लुगत, अहले किताब, अहले ईमान, अहले मुल्क, जो किसी भी मुल्क के वासी हैं, अहले कबीला, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी ईमान से, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक है, किसी भी खित्ते में है, जंगलों में है, पहाड़ों पर है, या केव्स में रहते हैं, या मुल्कों के अंदर डेजर्ट में रहते हैं, वहां तक खुदावंद की बादशाही की मुनादी की जाएगी। खुदा यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि कोई और मैसेज, सलीब का मैसेज, बपतिस्मे का मैसेज, या रेजरेक्शन का मैसेज, या यीशु मसीह के जो मौत का मैसेज। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि when this gospel, बहुत सारी खुशखबरियां बाइबल मुकद्दस की जीनत है, और उन खुशखबरियों से बढ़कर यीशु मसीह ने इस खुशखबरी को चुना कि ये खुशखबरी जब तक ना होगी फिर खात्मा होगा। और हम एज ए लीडर, एज ए प्रीचर, एज ए स्कॉलर, एज ए मजहबी रहनुमा, एज ए मीरे कारवां होते हुए हम खुदा के इस मैसेज को, यीशु मसीह की इस बात को निगलेक्ट करते हुए बादशाही का अभी उशीर भी पेश नहीं किया गया। इसका अंदाजा मैं यूं बताऊंगा कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वाले मुल्क इंडिया के अंदर तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ लोग या 43 करोड़, इससे ज्यादा लोग हैं, मौजूद हैं, और उनमें से तकरीबन 3 to 5% क्रिश्चियन होंगे, 7% होंगे, 10% होंगे, लेकिन 90% लोग अभी भी मूर्तियों को पूजने वाले, और उनके तकरीबन 38,000 मिलियन गॉड है जिनको वो पूजते हैं। 3800 मिलियन, सॉरी 1000 नहीं, 3800 मिलियन जिनको वो पूजते हैं। अभी तक उन तक खुदा की बादशाही का पैगाम पहुंचने वाला है। चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, वहां तकरीबन 1% भी क्रिश्चियन नहीं है। वहां खुदावंद की बादशाही का मैसेज पहुंचना बाकी है। अफ्रीका बहुत बड़ा बरे आजम है,
वहां तकरीबन 1 अरब और 30-35 करोड़ के लगभग लोग मौजूद हैं। लेकिन क्रिश्चियंस जहां हैं उनका स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन इसके बावजूद जो जादूगर, शेंटोइस्ट और दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन खुदा उनकी बादशाही का पैगाम उन तक अभी तक नहीं पहुंचा। क्रिश्चियंस मुल्क अपनी तरफ से लोग इसको क्रिश्चियंस मुल्क गर्दानते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहां तकरीबन 80% क्रिश्चियन है। लेकिन मैं आई डेयर टू चैलेंज कि वहां तकरीबन 10% या 20% भी लोग जो है वो बादशाही के बारे में अभी तक नहीं जानते। इवन वो नॉमिनल क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं और वो खुदा को नहीं even जानते। क्या लीडर्स ने किया है अभी तक? क्या किया है अभी तक? People are dying without word of God, without listening the gospel. Every gospel is real gospel. But we have to prioritize what Jesus prioritized. उसने prioritize इस मैसेज को किया है कि when this gospel of the kingdom shall preach all over the world to testify to all the nation, and then the end shall come. अजीज बहन भाइयों, अपने लीडर्स को पूछें, लीडर्स को झंझोड़ें, अपने लीडर से पूछें बादशाहत के बारे में, अपने पास्टर साहबान से, वो लोग जो आपके घर में आकर विजिट करते और दुआ करके हदिया लेकर चले जाते, उनसे पूछे, सवाल करें बादशाहत के बारे में। बादशाहत है क्या? अजीज बहन भाइयों, बाइबल का एक ही पैगाम है, खुदा की बादशाहत। और यीशु मसीह ने एक ही मैसेज को प्रीच किया, खुदा की बादशाहत। कलाम खुदावंद में खुदावंद यीशु मसीह की पहली पब्लिक स्टेटमेंट, जब बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुदस से आजमाया गया, 40 दिन और 40 रात बियाबान के अंदर, उसके बाद आकर पब्लिकली पहली स्टेटमेंट देता है कि मत्ती 4:17 में लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बाज तराजम में यह लिखा है कि खुदा की बादशाही हाथ पर है। हाथ पर होने का मतलब आ चुकी है। उसके एविडेंस के तौर पर मत्ती की इंजील उसके 12 बाब की 28वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहों को निकालकर, बीमारियों को चंगा करके और मुर्दों को जलाकर, अंधों को बिनाई देकर, लुंजों को हाथ देकर, उनके सूखे बाजू को हरा करके इस बात का ऐलान किया कि खुदा की बादशाही आ चुकी। लेकिन उस दौर की तरह आज भी लोग जो हैं वो तौमा की तरह आजमाना चाहते हैं। आज भी लोग बादशाही के मैसेज को कबूल करने की बजाय आजमाना चाहते हैं कि आई वांट टू हील फर्स्ट, आई वांट टू प्रॉस्पर फर्स्ट, देन। ये बाइबल का कानून नहीं है। बाइबल का कानून यह है कि किसने पहले मुझे कुछ दिया ताकि मैं उसको अदा करूं।
अपने आप को पेश करें गॉस्पल से, खुशखबरी से। खुशखबरी का मतलब यह होता है कि आप किसी खबर को सुनते हैं तो खुश होते हैं, खुशी की बात सुनते हैं तो खुश होते हैं। इस खुशी से भरें पहले। यकीन जाने जब आप बादशाही को जानेंगे तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी और आप समझेंगे कि हम इतनी उम्र बगैर खुशी के काटते रहे। आप क्रिश्चियन कहलाते हैं, आप संडे को इबादत करते हैं, हजारों लाखों रुपया हदिया देते हैं, खुशी नहीं है। इबादतें अटेंड कर, क्रूसेड्स अटेंड करते हैं और हीलिंग्स मीटिंग में जाते हैं, बीमारियां दूर नहीं हो रही। दैयकियां देते हैं, प्रॉस्पर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपको हकीकी खुशखबरी से दूर रखा जा रहा है। हकीकी खुशखबरी, एक ही खुशखबरी जिसको यीशु मसीह ने प्रायोरिटाइज किया है, उसको सुने, उससे अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लें। आज हर शख्स आसमान पर जाना चाहता है। हर शख्स चाहता है कि आसमान, उसके जहन को ऐसा तैयार किया गया है, वो समझता है कि आसमान पर हमने रहना है, वहां जाने के लिए रहना है, रहने के लिए जाना है और वहां जन्नत मौजूद है। अजीज बहन भाइयों, खुदा का ये मंसूबा ही नहीं है कि आप आसमान पर हैं। आप आसमान के लिए बनाए ही नहीं गए, बनाए आसमान पर है, भेजा आपको जमीन पर गया है। आपका सोर्स, आपका बाप आसमान पर रहता है, लेकिन उसने भेजा है कि जमीन पर रहकर उसको रिप्रेजेंट करो, उसकी सारी कुदरत और उसकी सारी शान शौकत को बयान करो और जमीन को मामूर और महकूम करो, इख्तियार रखो। उस बादशाह ने आपको बरकत दे रखी है। अपनी कुव्वत, अपनी पावर, अपनी सॉवरेंटी आपको डेलीगेट की है, आपके हवाले की है, शेयर की है आपसे। लेकिन इतना बड़ा धोखा कि उसकी बात को निग्लेक्ट करके डेविल की बातों पर गौर करते हैं। हम खुदा की बादशाही में रहने की बजाय शैतान की बादशाही में रहना पसंद करते हैं। इतना बड़ा धोखा। जानिए इस खुशखबरी को। When this gospel of the kingdom will be preached to all over the world, to testify to all the nation, then the end shall come. यह है खुशखबरी, यीशु मसीह की पहली खुशखबरी और आखिरी खुशखबरी यही है। आखिरी खुशखबरी कब? जब वो आसमान पर उठा। अगर अमाल की किताब उसके पहले बाब में देखते हैं, अमाल की किताब उसके पहले बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, थेफलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत सारे सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। पहली बात और आखिरी बात आसमान पर जाने से पहले उसने की बादशाही के बारे में, बादशाही के बारे में। ओ प्रेज राबा हाजाना हशेकी यालाबा, ओ राबाहंदा हसुतु हुशेबरिया बराबा। खुदावन, मैं अपने लोगों को, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत चाहता हूं। प्रेज गॉड। ओ खुदावन, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र हो। प्रेज, हालेलुया।
सो हम देख रहे कि खुदा की बादशाही की खुशखबरी जब तक तमाम दुनिया में न फैल जाए ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, फिर खात्मा होगा। अजीज बहन भाइयों, हम यीशु मसीह के उस मंसूबे को डिले कर रहे हैं। कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि ये खुशखबरी फैलाओ। कहां कहां कहा? यीशु मसीह ने बताया कि जब उसने शागिर्दों को 70 लोगों को भेजा और कहा कि मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि बदरूहों को निकालना, बीमारों पर हाथ रखोगे अच्छे हो जाएंगे, और चलते चलते यूं मुनादी करना कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। फिर जब उसने 2-2 को भेजा, एक जगह पे लिखा है कि उसने 2-2 को भेजा, यानी उन 70 लोगों को 2-2 करके भेजा, और उस वक्त भी उसने ये कहा कि बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, बहुत बड़ी कुव्वत का इख्तियार आपको दिया है। आप हर एक के पास ये मौजूद है। आप किसी पादरी को देखते हैं कि खुदा उसके वसीले से मुर्जे कर रहा है, तो आप उसके पीछे भाग जाते हैं। उसके पीछे भागे जो ये कुव्वत और कुदरत आपको डेलीगेट करता है, जिसने कर दी है। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हमें उसने बादशाही के बारे में पैगाम देने के लिए चुना है, भेजा है। हम अभी तक प्रॉस्पेरिटी, शिफा और सलीब, रेजरेक्शन, यीशु मसीह को बयान करते हैं चरनी के अंदर, यीशु मसीह को बयान करते हैं सलीब के ऊपर। दोनों जगहों पर ऐसे मजहब बना लिया गया है कि यीशु मसीह मजबूर है, गरीब है। अजीज बहन भाइयों, ये सब मीन्स टू द किंगडम है। मीन्स का मतलब है रास्ता। इन सारे में से गुजर कर उसने बादशाही को रिस्टोर करना है। अब रिस्टोर हो चुकी है। उस बादशाह के जो डेस्टिनेशन है उसको भूलकर आप रास्तों में अभी फिर रहे हैं, रास्तों में घूम रहे हैं। पहुंचे वहां, सलीब में से होकर गुजरे, वहां पहुंचे, वो डेस्टिनेशन आपके इंतजार में है। लिखा वो अपने दाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ ये बादशाही मिरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए रखी हुई है। अजीज बहन भाइयों, बादशाहत को सीखें, बादशाहत को जाने, बादशाहत को पढ़ें, बादशाहत में दाखिल हो और बादशाहत को फैलाएं। यही बाइबल का मैसेज है, यही आपको बताया गया है, और यही आपका मोटिव होना चाहिए। मोटिव क्या है? असेंस होनी चाहिए, रियल असेंस। यही है खुदा की बादशाहत। अब खुदा की बादशाही आ चुकी है। यीशु मसीह ने तब से ऐलान किया और कहा कि तमाम दुनिया में, यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम मेरे गवाह यहूदिया में होगे, फिर दूसरे इलाकों में निकलते निकलते पूरी दुनिया तक मेरे गवाह होगे। दुनिया तक पहुंचे। अभी तक हम अपने इलाके के पूरे लोगों तक नहीं पहुंचे। अभी तक हम अपने मुल्क में खुदा की बादशाही की मुनादी नहीं कर सके। अगर अब आपने ना की तो फिर कभी नहीं, आपका हिस्सा कभी नहीं डलेगा। आपके पास कुव्वत है, ताकत है, हिम्मत है, जवानी है। उठें,
बादशाह की मुनादी करें, मत डरें, मत ख्याल करें कि आपको कुछ जरर पहुंचेगा। कलाम खुदा में लिखा है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और देखो तुम्हें किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। ये बादशाह अपना इख्तियार डेलीगेट कर रहा है आपको। तो इसको देखने के लिए, इस बात को कि हम डिले कर रहे हैं, हम चलते हैं पुराने अहदनामे के अंदर। खुदा ने नूह को कहा कि तू कश्ती बना और उस कश्ती में इतने खाने बनाना जिसमें जुड़ा जुड़ा हर जानदार का ठहर सके, और जब तू अंदर अपने खानदान समेत बैठ जाएगा तो फिर बारिश आ जाएगी। अब बारिश तैयार है, बारिश यस खुदा ने कह दिया तो वो बारिश तैयार है। नूह ने कश्ती बनाते वक्त 120 साल लिए। अगर वो कश्ती सपोज 10 साल में बन जाती तो बारिश 10 साल के बाद आ जाती। अगर 50 साल में बन जाती तो बारिश 50 साल के बाद आ जाती। अगर बारिश 90 साल में कश्ती बन जाती तो बारिश 90 साल में आ जाती। लेकिन 120 साल खुदा ने इंतजार किया। जब 120 साल के बाद वो जोड़ा जोड़ा उसमें रख लिया गया, जब आखिर में नूह अपने बेटों और बहुओं और अपनी बीवी के साथ कश्ती में दाखिल हुआ तो दरवाजा खुदा ने बंद किया और बारिश शुरू हो गई। फिर आसमान के, जमीन के सोते टूटे, आसमान खुल गया बारिश के लिए, और 40 दिन और 40 रात बारिश पड़ती रही। अब बारिश तैयार थी, लेकिन खादिम जिसने काम करना था उसके हाथ से काम 120 साल में तकमील तक पहुंचा। इसी तरह खुदा की बादशाही कायम है, मौजूद है, लेकिन इसको फैलाना है दूसरों तक। और अगर ये आज से 20 साल पहले, 2000 तक ये सारा काम हो चुका होता तो 2000 में खुदावंद यीशु मसीह आते और अपने लोगों को उठा ले जाते और फिर अगला काम शुरू हो जाता। लेकिन अभी तक ये बादशाही की खुशखबरी नहीं फैली और हम किसी ना किसी तरह से खुदावंद के आने को और आसमान पर कलीसिया के उठाए जाने को डिले कर रहे हैं, क्योंकि लीडर्स सुस्त हैं, लीडर्स काटने वाले सुस्त हैं। चर्च ने आज तक उस तरह मैसेज को फैलाया ही नहीं बादशाहत के, बल्कि चर्च इवन खुद नहीं जानता इसके बारे में बहुत ज्यादा। आइए अजीज बहन भाइयों, खुदाउन की बादशाही को जाने, दूसरों तक पहुंचाएं और यीशु मसीह के आना जल्द मुमकिन हो सके इसमें हिस्सा लें, ताकि इन मुश्किलात, ट्रबुलेशंस से बच सकें। याद रखें कि आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा रहेंगे। ये यीशु मसीह की गारंटी है, ये बाइबल की गारंटी है, ये बाइबल के खुदा की गारंटी है, और ये बादशाह यीशु की गारंटी है जो कभी झूठ नहीं बोलता। वो जो कहता है वो करता है। उसका कलाम कभी रायगा बगैर तासीर किए वापस नहीं जाता, बगैर असर किए वापस नहीं जाता। घास सूख जाती है, फूल कुमला जाते हैं, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। खुदा
हमें अपने कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ बादशाह आका, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू कुद्दूस है, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है। ऐ खुदावंद, तू बादशाह है, बादशाहों के बादशाह, अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर तू शिफा बख्शता है। और ऐ खुदा आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों को बदले, आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करे, आज का कलाम हर एक की जिंदगी में तासीर करे, और आज का कलाम के सबब से लोग बदलें और तेरी बादशाही के मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं। इवन इस मैसेज को सुने, वॉच पार्टी पे लगाएं, अपने दोस्तों को सेंड करें और इसको शेयर करें से ज्यादा, ताकि खुदा के कलाम बादशाही का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच सके। ऐ खुदा, आज उन तमाम बीमारों, दुखियों, परेशान हाल, बेरोजगार लोगों के लिए दुआ करता हूं। अपनी बादशाही के खजाने खोल दे, अपने आसमान को खोल दे, अपना आसमान उनके लिए खुला रखना, और अपने लोगों को, लीडर्स को जो सुस्ती में पड़े हुए हैं, जो आंखें बंद करके चल रहे हैं, खुदा उनको झंझोड़ उठा खड़ा करता कि तेरी बादशाही का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके, कौम और कबीलों तक पहुंच सके। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रिफाकत और शाकत तमाम रूह ज़मीन के ईमानदारों के साथ, खासकर मेरे देखने वालों और उनकी खानदान घरानों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, और आपका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वीकली मुझे देखते हैं, ज्वाइन करते हैं। खासकर सिस्टर मिसेस अर्ल वेस्ट, खुदा उनके साथ हो और उनको अपनी पनाह में रखे। उनके बच्चों की सलामती चाहता हूँ। दानिश पोरस, जिसको कोल्ड ने घेरा हुआ है और वो बीमारी के बावजूद इस मीटिंग को रन कर रहा है, और जितने भी दूसरे दूर नजदीक से जो मेरे सुनने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।